Hello friends, in this video we'll discuss a very important technique called as amniocentesis. Okay? Amniocentesis. Amniocentesis is a prenatal diagnostic technique. That means this is a technique, okay, which is applied before birth, and with the help of this technique certain disorders of the fetus can be detected before birth of the baby or before birth of the fetus. And this makes it very important because once certain defects which may be very perilous or very harmful for the fetus are detected before birth, then such a birth can be aborted, such a fetus can be aborted. अगर पहले ही birth से पहले ही 6 to 11th week of gestation पे पता चलता है कि ये जो fetus अंदर develop हो रहा है उसमें कोई बहुत difficult problem है, बहुत खतरनाक problem है, तो इसको दुनिया में आना ही नहीं चाहिए. This fetus can be aborted before birth. That's what makes this technique very important technique. So this is a prenatal, means before birth, diagnostic technique, a diagnostic technique which can be applied before birth to determine a number of disorders that the fetus may have. What is this amniocentesis meant for? It's meant for determining fetal disorders. Okay, it's meant for determining fetal disorders. And most of the time is the good time, better time for doing this technique, for going for this examination, amniocentesis, is 6 to 11th week of gestation, 6 to 11th week of pregnancy. Now, what is done in this technique? In this technique, basically, amniotic fluid is taken out and it is studied, it is analyzed, it is processed in the laboratory and then analyzed for certain features. So amniotic fluid is very important. We know that amniotic fluid is a fluid which is around the fetus, okay, in that sac called as amnion. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो एमनियन होता है उसमें एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो एज शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, जो बहुत सारे फंक्शंस, जो लुब्रिकेट करता है फीटस को और उसको जो है डिफरेंट प्रॉब्लम से दूर रखता है एमनियोटिक फ्लूइड, एंड इट कीप्स वाटर एनवायरनमेंट अराउंड दैट फीटस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटस टू डेवलप. नाउ इसका प्रोसीजर क्या है? हाउ इज दिस एमनियोसेंटेसिस डन? प्रोसीजर नंबर 1 क्या है? पहला जो स्टेप एमनियोसेंटेसिस में होता है वो क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये कलेक्ट करना होता है फ्रॉम द वुमेन. ओके, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी से, उसके यूट्रस में जो फीटस डेवलप हो रहा है, इस फीटस के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड है, वो सबसे पहले क्या करना है? वो एमनियोटिक फ्लूइड लेना है. Amniotic fluid is collected. किस तरह से? This process is done by an expert medical practitioner, an expert doctor, an expert person जो होगा वही ये कर सकता है. कोई मतलब आम आदमी, आम इंसान ये नहीं कर सकता, because it can be very dangerous. अगर कोई आम इंसान, कोई जो है a person who is not expert, वो ये काम करता है और वो सुई जो है, वो नीडल जो है वो फीटस को लगी तो प्रॉब्लम हो सकती है. That's why this is done under medical supervision. A particular expert person can perform this process. What is being done? क्या होता है? A very fine needle is inserted. एक बहुत ही फाइन नीडल को इंसर्ट किया जाता है into the womb of the mother and then into the amniotic sac under the scanning of USG, under the observation of USG, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, अल्ट्रासाउंड इसको कहते हैं, सोनोग्राफी जो कहते हैं, इसके अंदर सोनोग्राफी के हेल्प से, वो सोनोग्राफी का जो मॉनिटर होता है उस पर देखा जाता है कि सुई कहां पहुंची, एम्ब्रियो कहां है. सो विद द हेल्प ऑफ USG a very fine needle is inserted into the amniotic sac of the fetus, okay, with a lot of caution, and a small amount of amniotic fluid is taken out, is aspirated. Okay, a small amount of amniotic fluid is aspirated. कितना amniotic fluid? 15 to 20 ml of amniotic fluid is taken out from the amnia. ज्यादा भी नहीं लेना है ये फ्लूइड, ओके, उससे फिटस को प्रॉब्लम हो सकती है. सो ओनली 15 to 20 ml ऑफ दिस amniotic fluid is taken. एमनियोटिक फ्लूइड क्यों लेते हैं? क्यों एमनियोटिक फ्लूइड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है इट इज इन इमीडिएट कांटेक्ट विद द फीटस. इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स होती है, एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स होती है. ये फीटस जो है इसके गट के थ्रू ये एमनियोटिक फ्लूइड चला जाता है, फीटस जो है इसको एनगल्फ करता है, टेक इन करता है, फिर वापस भी छोड़ता है.
सो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है फीटस इसको कंटिन्यूसली टेक इन करता है और बाहर भी छोड़ता है। इन दिस कोर्स ऑफ दिस टेकिंग इन एंड लिविंग आउट दिस एमनियोटिक फ्लूइड व्हाट हैपेंस, जो फीटल की गट सेल्स होती है वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती हैं। फीटस की जो स्किन की सेल्स है वो स्लैप ऑफ होती है और इस एमनियोटिक फ्लूइड में रहती है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे सेल्स रहती है। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इज एनालाइज्ड फॉर फीटल सेल्स। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसे फीटल सेल्स जो है आइसोलेट की जाती है, क्योंकि हमको इन्हीं फीटल सेल्स के साथ काम करना है इस टेक्निक में। जब ये सेल्स को आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड, उसके बाद इन सेल्स को जो है कल्चर करते हैं। दीज सेल्स आर कल्चर्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड बॉडी इन द लैब अंडर सेम कंडीशंस। ऐसी ही कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं जिस तरह बॉडी के अंदर कंडीशंस होते हैं। दिस इज कॉल्ड इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, इन ग्लास, इन टेस्ट ट्यूब, इन कल्चर मीडिया। सो द सेल्स which are isolated obtained from the amniotic fluid they are cultured to increase their number. वो सेल्स क्या डिवाइड करते हैं। नाउ दीज सेल्स डिवाइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, दे डिवाइड। और फिर क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप इज डन, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग। दीज सेल्स आर कैरियोटाइप्ड, दीज सेल्स आर कैरियोटाइप्ड। अभी फीटल सेल्स जो है ये कल्चर मीडियम में डिवाइड कर रही है। इसके बाद हम एक प्रोसीजर करते हैं, हम एक केमिकल इसमें ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्चिसिन। वो कोल्चिसिन जो सेल्स डिवाइड हो रही है उनको अरेस्ट करता है एट मेटाफेज। ये सारी माइटोटिकली डिवाइड हो रही है सेल्स, फीटल सेल्स। नाउ व्हेन वी ऐड कोल्चिसिन, वी ऐड कोल्चिसिन फॉर ओके कैरियोटाइपिंग। ये कोल्चिसिन क्या काम करता है, ये सेल्स को अरेस्ट करता है एट मेटाफेज। और जब ये मेटाफेज पे अरेस्ट हो गई, देन वी ऑब्जर्व दीज सेल्स। ओके, जिन सेल्स को हमने कोल्चिसिन के साथ ट्रीट किया, वी ऑब्जर्व दीज सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप एंड हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं। हम जब क्रोमोसोम्स को देखते हैं, हम क्रोमोसोम्स का फोटोग्राफ लेते हैं, फिर इन क्रोमोसोम्स को हम पेयर्स में जो है पेयर्स में अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ। वो एक प्रोसीजर है किस तरह से हम कैरियोटाइप बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन शॉर्ट में क्या है, कैरियोटाइप हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं क्रोमोसोम्स का, फिर इन क्रोमोसोम को होमोलॉगस पेयर्स में हम अरेंज करते हैं। होमोलॉगस पेयर्स वो पेयर्स होते हैं व्हिच आर सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन नंबर ऑफ जीन्स, सिमिलर इन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये सारी चीजें जिन क्रोमोसोम्स की सिमिलर होंगी उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो जब हमने ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में अरेंज किया तो इस तरह से हमारा एक फोटोग्राफ तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। दैट फोटोग्राफ जिस पे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं इन पेयर्स, होमोलॉगस पेयर्स, उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। नाउ ह्यूमन बीइंग्स जो है हम जानते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं और इन 46 क्रोमोसोम्स को 23 पेयर्स में अरेंज किया जाता है। These 46 chromosomes are arranged in 23 homologous pairs. फाइन। सो ये तो होगा प्रोसीजर किस तरह से हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को करते हैं। नाउ जब हमने ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक पूरा किया, हमने कैरियोटाइप बनाया, हमने क्रोमोसोम्स को जो है पेयर्स में अरेंज कर दिया, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एमनियोसेंटेसिस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो है कि विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस बिफोर द बर्थ ऑफ द फीटस वी कैन डिटेक्ट कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। That is the disorder which are present by birth, along the birth, before birth, within the womb of the mother. Fetus has certain problems. Those problems are called as congenital. और एक congenital usually क्या होती है, because of chromosomal disorders. जब chromosomes में problem होगा तो fetus में problem होगा, इसलिए इन problems को हम congenital disorders कहते हैं या हम बोलते हैं chromosomal disorders. So the most important, foremost important, okay, function and significance and importance of amniocentesis is that we can detect chromosomal disorders of the fetus before birth. And up to date, till date, we have been able to detect, that is we can detect more than 50 chromosomal disorders. हम 50 से ज्यादा chromosomal disorders को डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। और जब हमें अगर हमको लग रहा है कि कोई फीटस इसमें कोई खतरनाक जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, कैरियोटाइप में डिसऑर्डर है, ट्रांसलोकेशन हुआ है, इसको ब्लड कैंसर हो सकता है कुछ, तो कोई फायदा नहीं, या डाउन सिंड्रोम हो सकता है, डिफरेंट सिंड्रोम्स हो सकते हैं इसको। तो अगर हमको वो प्रॉब्लम्स पहले ही पता चलती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस फीटस को अबॉर्ट कर सकते हैं ताकि लेटर इसकी लाइफ में इसको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स में कितने अभी हमने कहा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स 46 है, उनको 23 पेयर्स में अरेंज करते हैं। तो मान लीजिए पेयर नंबर फर्स्ट है,
पेयर नंबर फर्स्ट होमोलॉगस का, फिर पेयर नंबर सेकंड है, ये पेयर नंबर सेकंड है, ओके, और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन एंड सो फॉर एंड अल्टीमेटली 23rd पेयर। ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मल है, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक केस ऐसा आया कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो पेयर नंबर 1 है वहां पर ठीक है, 2 ही क्रोमोसोम्स है, एक पेयर है, नॉर्मल है। फिर क्रोमोसोम पेयर नंबर सेकंड वहां पर भी 2 है, पेयर नंबर थर्ड वहां पर भी 2 है, पेयर नंबर फोर्थ 2 है, ऐसे ठीक है, ओके। लेकिन जब हम 21st पेयर पे पहुंच जाते हैं, नॉर्मली कितने होने चाहिए, अभी हम कह रहे थे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, हर एक पेयर में 2 ही होने चाहिए। हमने देखा पेयर नंबर 1 पे 2, पेयर नंबर सेकंड पे 2, पेयर नंबर थर्ड पे 2। लेकिन जब हम पेयर नंबर 21st तक पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं यहां पर 2 ही क्रोमोसोम्स नहीं है, पेयर नंबर थर्ड पे 3 क्रोमोसोम्स है। होने कितने चाहिए, 2, लेकिन है कितने, 3। नाउ व्हाट इज दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड, जब किसी पेयर पे 2 के बदले 3 होने चाहिए 2, अगर 3 है तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज ट्राइसोमी। अब किस पोजीशन पे हो रहा है, 21st पोजीशन पे हो रहा है, तो इसको कहते हैं 21st ट्राइसोमी। नाउ हमने एक इंडिविजुअल में देखा, इसका कैरियोटाइप जब हमने तैयार किया बिफोर बर्थ, तो हम देख रहे हैं कि 21st जो पेयर है वहां पर 2 ही नहीं 3 है, तो हमने कहा इसको इस इंडिविजुअल को, इस फीटस को 21st ट्राइसोमी है। और जिसको ये जो 21st ट्राइसोमी इसको डिस्कवर किया था एक डॉक्टर ने, उसका नाम डाउन था, तो दिस कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। अगर किसी फीटस में 21st ट्राइसोमी है, he is suffering from a problem and that problem is called as Down syndrome. ऐसे इंडिविजुअल्स we'll study them in next unit, okay, we are going to study them in genetics, unit of genetics, we'll study in detail. तो ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम होती है, they don't reach the reproductive age, ये तो reproductive age से पहले ही मर जाते हैं। इनके शॉर्ट जो है नेक शॉर्ट होती है, आईज प्रोट्रूडेड होती है, ओके, पामर्स क्रीज होता है, बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्ट ये फिंगर्स होता है एटसेट्रा, मेंटल डिमेंशिया होता है, मेंटल पावर ज्यादा नहीं होता है, ड्रिबलिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनमें होती है, विल डिस्कस देम इन डिटेल। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर पहले पता चला तो ये तो कोई फायदा नहीं, लेट सच फीटस कम आउट, टेक बर्थ, कोई फायदा नहीं, दिस फीटस कैन बी अबॉर्टेड, ठीक है। इसी तरह से और एक प्रॉब्लम है XXY, ये तो ऑटोसोमल प्रॉब्लम थी कि ऑटोसोमल पेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर पता चला कि देखिए हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग जो है ना, या इधर मेल होंगे या फीमेल होंगे, अब तो न्यूट्रल जेंडर्स भी है, लेकिन यूजुअली एक ह्यूमन बीइंग इसमें 22 पेयर्स होंगे ऑटोसोम्स प्लस ये XX हो सकता है, फीमेल हो सकती है, या 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्लस X एंड Y, ये मेल हो सकता है। लेकिन अगर हमने देखा कोई इंडिविजुअल ऐसा है, फीटस, हमने एमनियोसेंटेसिस किया और हमको पता चल रहा है कि ये जो फीटस है इसमें X क्रोमोसोम तो 2 है लेकिन Y भी है, ये X एंड Y, अब इसको क्या कहेंगे, आप मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे, इसमें तो फीमेल के दोनों कैरेक्टर्स, मेल का भी कैरेक्टर है, तो प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अगर कोई फीटस ऐसा है, कोई इंडिविजुअल ऐसा है, इसमें 2 X क्रोमोसोम और Y भी है, X एंड Y है, he is suffering from a problem called Klinefelter syndrome। तो ये तो ना मेल होगा ना फीमेल होगी, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम which can be diagnosed by amniocentesis। सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है इसमें सिर्फ X सिंगल है और कोई नहीं है, X 0 है कंडीशन, 22 पेयर्स इसमें ऑटोसोम्स बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की जब बात करेंगे तो इसमें क्या है, only one X chromosome, only single X chromosome, and this is called as Turner syndrome। Again a problem, you cannot call her a male or a female। प्रॉब्लम है, इसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। सो समाज में, सोसाइटी में such a kind, you know, it be mal adjusted in the society, and that's the problem for such individuals to live a comfortable life within the society. So such fetuses can be aborted before birth. This is how the amniocentesis is going to help us. Then there is one more function of this that is banned now, that is sex determination। अब ऐसा है, हम जानते हैं जब हम ह्यूमन बीइंग्स का कैरियोटाइप बनाते हैं तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और एक पेयर ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वही डिटरमाइन करता है कि ये इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। तो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स 2 हैं, X एंड Y। X की अलग शेप है, Y की अलग शेप है, X का अलग साइज है, Y का अलग साइज है। तो जब हम कैरियोटाइप बनाएंगे, ठीक है ना, जब कैरियोटाइप बनाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम, देन इसी तरह से पेयर्स में पेयर्स में पेयर, और लास्ट वाला पेयर जो होता है ना, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर। अब मैंने पहले भी बताया X और Y की शेप डिफरेंट है, X और Y का साइज भी डिफरेंट है। लास्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्रोमोसोम 2 डिफरेंट होंगे तो आपको पता चलेगा
ये इंडिविजुअल जो है ये मेल है, क्योंकि दो लास्ट वाला पेयर जो है इसमें दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या होना है मेल, क्योंकि इसका मतलब ही है कि ये एक्स एंड वाई है, एक्स एक्स नहीं है। अगर ये सिमिलर होंगे तो आपका मतलब आपको पता चलेगा ये क्या है, फीमेल, क्योंकि एक्स एंड एक्स है, वाई वाई तो नहीं होता ना, दो ही कंडीशन है, या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। अगर आपको लास्ट पेयर वाले क्रोमोसोम सिमिलर दिखते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये इंडिविजुअल कैसा, फीमेल। इसीलिए आज की डेट में जब एमनियोसेंटेसिस करते भी हैं, करना लोग करते हैं, करना भी चाहिए, तो डॉक्टर जो इसको प्रिपेयर करते हैं वो इस वाले फोटोग्राफ को फेडेड रखते हैं, इसके ऊपर कोई सील रखते हैं या इसको रखते ही नहीं है, ताकि सेक्स ऑफ द बेबी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमको पता चला दैट through amniocentesis we can determine the sex of the baby, sex of the fetus, कि ये fetus मेल है या फीमेल है। इसको अब बैन किया गया है, क्यों बैन किया गया? we know that सोसाइटी में ऐसा है कि that boys are preferred over girls, ठीक है ना। सोसाइटी में ऐसा है कि लोग लड़कों को पसंद करते हैं, लड़कों का पैदा होना पसंद करते हैं, गर्ल्स का पैदा होना पसंद नहीं करते हैं। जब थ्रू एमनियोसेंटेसिस आपको पता चला कि नहीं फीटर जो है गर्ल है, तो आप क्या करते हैं, लोग करते हैं, क्या करते हैं लोग, फीटिसाइड करते हैं, एबॉर्शन करते हैं। उससे क्या होता है, ये फीमेल फीटिसाइड होता है, फीमेल फीटिसाइड, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम है। फीमेल फीटिसाइड से क्या होगा, जो सोसाइटी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, दैट्स कॉल्ड सेक्स रेशियो इन अ पॉपुलेशन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। ये यूजुअली होना चाहिए 1:1, यानी अगर एक पॉपुलेशन में 1000 मेल्स है तो फीमेल्स कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल फीटिसाइड कर रहे हैं, लड़की को मार रहे हैं, तो व्हाट हैपन, जो मेल्स की पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हो जाएगी और फीमेल्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर आज की बात करें ओवरऑल इंडिया, तो ये क्या है 1000:934, 934 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हम देख रहे हैं लड़कियां कम है देन दी बॉयज। कुछ स्टेट्स में इससे ज्यादा जो है सेक्स रेशियो खराब है, लड़कियों की तादाद बहुत कम हो रही है। होगा क्या, प्रॉब्लम होगी पॉपुलेशन में, क्राइम ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचेंगे, उनको तो शादी करनी है ना, लड़की चाहिए, कहां से लाएंगे, आपने सेक्स रेशियो डिक्रीज किया है। सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस हैज बीन बेन्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज दैट विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस वी कैन डिटेक्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हम एक सेल को लेंगे और इसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे और देखेंगे इस सेल में क्या क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये सेल पूरा मेटाबॉलिज्म ठीक इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो सेल हमने एमनियोटिक फ्लूइड से फीटल सेल आइसोलेट किया, हम जब उस सेल का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, अगर उस सेल का मेटाबॉलिज्म पूरा फाइन है, इसका मतलब पूरा फीटस जो है इसका पूरा मेटाबॉलिज्म फाइन है, क्योंकि वो सारी सेल्स ऐसी है ना, सिमिलर। लेकिन अगर इस सेल में कोई प्रॉब्लम है, किसी मेटाबॉलिक पाथवे में प्रॉब्लम है, इसका मतलब फीटस जो होगा इसमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सेल तो वहीं से आ रही है। इससे हम डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोनुरिया। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट यूनिट, फिनाइलकीटोनुरिया। नाउ फिनाइलकीटोनुरिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें एक एंजाइम सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, टायरोसिनेज एब्सेंट होता है। तो अगर हमको पहले ही पता चला तो ये इंडिविजुअल इसको प्रॉब्लम हो गई, लेटर ऑन लाइफ में प्रॉब्लम, तो सच वी कैन गो फॉर redressal of such problems, ठीक है। सो एज सच हमने पूरी टेक्निक को डिस्क्राइब किया और ये इंपॉर्टेंस को भी देख लिया। थैंक यू वेरी मच।